So in this video we will discuss about the crystal that you may found in the urine of the different animals. So the first crystal that you may found in the urine samples of the different animal is the ammonium biurate. So simply the crystal size is variable and it can be brown colored, spherical to the irregular shaped crystal, and it shows a peculiar characteristics of like thorny apple. They can be seen commonly in the Dalmatians and the English bulldogs. In other breeds of dogs or the cats, the ammonium crystals suggest the liver dysfunction and the portosystemic shunting. This is an important note that the portosystemic shunt (PSS) is an abnormal vessel that shunts portal blood from the splenic circulation to flow directly to the systemic circulation by bypassing the liver. So देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले अबाउट द अमोनियम बायोरेट. अमोनियम बायोरेट एक ऐसा क्रिस्टल है जो अक्सर आपको यूरिन सैंपल्स में देखने के लिए मिल जाता है. So simply the crystal size of the ammonium biurate is variable. It can be brown colored and it can vary from the spherical to the irregular crystal and shows a peculiar morphology of a thorny apple. देखो, अब ये जो अमोनियम बायोरेट का क्रिस्टल है ना, इसका साइज वेरी करता रहता है फ्रॉम स्पेरिकल टू द इरेगुलर शेप. इसका कलर ब्राउन कलर का होता है, ठीक है. इसकी एक पेकुलर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है कि इसका जो अपीयरेंस होता है ना, वो थॉर्नी एप्पल की तरह दिखता है, ठीक है. They can be seen commonly in the Dalmatians and the English bulldogs. अभी जो Dalmatians breed के जो dogs होते हैं और जो English bulldogs होते हैं ना, उनके यूरिन में ये जो अमोनियम बायोरेट के क्रिस्टल्स हैं नॉर्मली हमें देखने के लिए मिलते हैं. दिस इज बिकॉज ऑफ नो पैथोलॉजिकल रीजंस एंड ये एक नॉर्मल कंडीशन को डिपिक्ट करते हैं, ठीक है. Moving on, in other breeds of the dogs or the cats, the ammonium crystals suggest the liver dysfunction and portosystemic shunting. डाल्मेशियंस और इंग्लिश बुलडॉग्स के अलावा जितने भी डॉग ब्रीड हैं और कैट ब्रीड हैं, अगर उनके यूरिन में अमोनियम बायोरेट के क्रिस्टल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, इसका मतलब वहां पे पैथोलॉजिकल डिसफंक्शन है. देयर मे बी डिसफंक्शन ऑफ लिवर और पोर्टोसिस्टमिक शंटिंग. बेसिकली पोर्टोसिस्टमिक शंटिंग क्या होती है? सिंपली द पोर्टोसिस्टमिक शंटिंग PSS is an abnormal vessel that shunts the portal blood from the splenic circulation to flow directly to the systemic circulation by bypassing the liver. देखो, मैंने क्या बताया कि जो डेल्मेशियंस ब्रीड के डॉग्स हैं और इंग्लिश बुलडॉग्स हैं, उनके केस में अगर यूरिन सैंपल को जज करते हो वहां अमोनियम बायोरेट मिलता है तो दैट डिपिक्ट्स अ नॉर्मल कंडीशन. लेकिन बाकी सारे जितने भी ब्रीड हैं डॉग के और कैट्स हैं, तो वहां पे अगर यूरिन सैंपल में अमोनियम क्रिस्टल्स मिलते हैं तो वो एक पैथोलॉजिकल कंडीशन को डिपिक्ट करते हैं दैट दे मे बी सफरिंग फ्रॉम डिसफंक्शन ऑफ लिवर एंड पोर्टोसिस्टमिक शंटिंग. अब ये पोर्टोसिस्टमिक शंट क्या होता है? इसको हम पीएसएस के नाम से भी जानते हैं. ये बेसिकली एक एबनॉर्मल वेसल है जो क्या करती है? शंट करती है पोर्टल ब्लड को, पुश करती है पोर्टल ब्लड को कि वो स्प्लेनिक सर्कुलेशन से डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाए बाय पासिंग द लिवर, ठीक है. This is the microscopic picture of the ammonium biurate crystals. These crystals are common in the case of Dalmatians and the English bulldog breeds, but may not be normal and depict a pathological condition in the other breeds of dogs and cats. The next crystal that you may found in the urine samples of a different animal is the amorphous crystal. So simply they are small irregular shaped crystals, can be different composition of ureate, xanthine, phosphate and depending on the pH can be seen in the healthy animals also. So देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे about the next crystal that you may see in the urine sample and it is amorphous crystal. अब ये जो amorphous crystal होता है ये छोटा होता है और irregular shaped crystal होता है. Coming to the composition of the amorphous crystal, it can be composed of different substance like urate, xanthine and phosphate and its composition depend on the pH, ठीक है. Moving on, it can be seen in the healthy animals. अभी जो amorphous crystal है अगर यूरिन सैंपल में हमें दिखते हैं तो इट इज नॉट ऑलवेज कि वो किसी पैथोलॉजिकल कंडीशंस को डिपिक्ट करेंगे. दीज क्रिस्टल्स कैन बी सीन इन द यूरिन सैंपल्स ऑफ हेल्दी एनिमल्स आल्सो, ठीक है. This is the microscopic picture of the amorphous crystal that you may found in the urine samples of different animals that may or may not be suffering with any kind of pathological conditions. Moving on, the next crystal is the bilirubin. So simply they are the small needle-like to the granular yellow or yellow-brown crystals.
It indicates the bilirubinuria due to the conjugated or direct bilirubin in the urine. The bilirubinuria can be normal in the dogs to some degree, but it is abnormal in the other species. So देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे about the next crystal and it is bilirubin. So simply the bilirubin are small needle like to the granular येलो और येलो ब्राउन क्रिस्टल्स. अब ये जो बिलिरुबिन के क्रिस्टल्स होते हैं ना, छोटे छोटे और निडल लाइक होते हैं. दे कैन बी ग्रेनुलर आल्सो, और इनका जो कलर होता है वो वेरी करता है येलो और येलो ब्राउन क्रिस्टल्स में. ठीक है, मूविंग ऑन, इट इंडिकेट्स द बिलिरुबिनेरिया ड्यू टू द कंजुगेटेड बिलिरुबिन इन द यूरिन. अब देखो, अगर किसी एनिमल के यूरिन में हमें बिलिरुबिन मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो एनिमल बिलिरुबिनेरिया नाम की कंडीशन से सफर कर रहा है, क्योंकि उसके यूरिन में डायरेक्ट बिलिरुबिन आ रहा है. ठीक है, मूविंग ऑन, द बिलिरुबिनिया कैन बी नॉर्मल इन द डॉग्स ड्यू टू सम डिग्री, बट इट इज एबनॉर्मल इन अदर स्पीशीज. अब ये जो बिलिरुबिनिया की कंडीशन है ना, ये डॉग्स के केस में कुछ हद तक नॉर्मल मानी जाती है, कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशंस नहीं होती उस समय. बट जितनी भी अदर स्पीशीज हैं अदर देन द डॉग, उन सभी में अगर यूरिन सैंपल में बिलिरुबिन हमें देखने के लिए मिलता है तो इट इज एबनॉर्मल. ठीक है, this is the microscopic picture of a bilirubin crystal that you may seen in the urine samples of different animals. It is normal in the case of a dog to some degree, to some extent, but is abnormal in the case of other species than dog. ठीक है, moving on, the next crystal is the calcium carbonate. Simply, it is of variable size with the circular variants typically being medium to large, spherical to irregular, rhomboid, dumbbell and ovoid shape, yellow to the colorless crystals. They can be of spherical forms and have the radial striations normally seen in the case of horses, guinea pigs, but not normally seen in the case of dogs, cats or ruminants. So देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे about the next crystal and it is calcium carbonate. So simply they are variable in size with the circular variants typically being medium to large, spherical to irregular, rhomboid, dumbbell or ovoid shape and vary from yellow to the colorless crystal. अब ये देखो, जो कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स होते हैं ना, वो बेसिकली इनका साइज वेरी करता है. जो सर्कुलर वेरिएंट्स होते हैं, जो सर्कुलर क्रिस्टल होते हैं, वो मीडियम से लार्ज होते हैं एंड देयर साइज और शेप कैन वेरी फ्रॉम स्फेरिकल टू द इररेगुलर शेप. इनकी शेप रोम्बॉइड भी हो सकती है, डम्बल शेप भी हो सकती है और ओवॉइड शेप भी हो सकती है. और इनका जो कलर होता है ना, बेसिकली वेरी करता है फ्रॉम येलो टू द कलरलेस वन. ठीक है, मूविंग ऑन, द स्फेरिकल फॉर्म ऑफ द क्रिस्टल्स हैव द रेडियल स्ट्राइएशंस. अब जो भी कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स स्फेरिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, उनके पास क्या होगी, रेडियल स्ट्राइएशंस होंगी. एंड दिस इज द पेक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्फेरिकल फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल. दे आर नॉर्मली सीन इन द केस ऑफ हॉर्स एंड गिनी पिग्स. अगर आप हॉर्स और गिनी पिग्स का यूरिन सैंपल कलेक्ट करते हो और आपको वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट देखने के लिए मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स देखने के लिए मिलते हैं, तो इट डिपिक्ट्स द नॉर्मल कंडीशन. ठीक है, मूविंग ऑन, नॉट नॉर्मली सीन इन द केस ऑफ अ डॉग, कैट्स एंड रूमिनेंट्स. अगर डॉग, कैट और रूमिनेंट्स के सैंपल को आप जज करते हो, यूरिन सैंपल को, और अगर आपको वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स देखने के लिए मिलते हैं, तो इट इज सिंपली एबनॉर्मल इन द केस ऑफ डॉग्स, कैट्स एंड रूमिनेंट्स. ठीक है, so this is the microscopic picture of a calcium carbonate crystal. As I told you that their shape, size, color may vary from different variants, isn't it? And you can appreciate that fact in this particular microscopic picture. As well as just a reminder that the calcium carbonate crystals are normal in the case of horses and guinea pig urine, but it depicts abnormal conditions in the case of dog, cat and ruminants. So moving on, the next crystal is the calcium oxalate dihydrate. So they are simply mostly seen in the small size but can be large also. They are colorless octahedron and have the envelopes. They can be seen in the healthy animals or in the animals with the calcium oxalate uroliths. They can also be seen with the hypercalciuria or hyperoxaluria conditions in an animal. Example which will develop when the animal fed on the ethylene glycol or oxalate rich plants. They can develop over the time with the storage of urine. So देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे about the next crystal and it is calcium oxalate dihydrate crystals in the urine. ठीक है, so simply they are mostly small but can be large.
अब जो कैल्शियम ऑक्सलेट डाइहाइड्रेट क्रिस्टल का साइज होता है ना, ये यूजुअली स्मॉल होता है, बट कुछ केसेस में इसका साइज हमें बड़ा भी देखने के लिए मिला है। दे कैन बी कलरलेस ऑक्टाहेड्रन्स विद एनवलप्स। अभी जो कैल्शियम ऑक्सलेट डाइहाइड्रेट क्रिस्टल्स होते हैं ना, ये कलरलेस होते हैं, इनमें कोई कलर नहीं होता, ऑक्टाहेड्रन शेप होती है और दे आर कवर्ड विद अ एनवलप। ठीक है, मूविंग ऑन, कैन बी सीन इन द हेल्दी एनिमल्स और इन एनिमल्स विद द कैल्शियम ऑक्सलेट यूरोलिथ्स। अब देखो, ये जो कैल्शियम ऑक्सलेट डाइहाइड्रेट क्रिस्टल है ना, ये हेल्दी एनिमल्स के यूरिन में भी देखा जाता है और उन एनिमल्स के यूरिन में देखा जाता है जहां पे कैल्शियम ऑक्सलेट्स के स्टोन फॉर्मेशन है और या तो कैल्शियम ऑक्सलेट यूरोलिथ्स हैं उन एनिमल्स में। ठीक है, मूविंग ऑन, दे कैन आल्सो बी सीन विद द hypercalcinuria or hyperoxaluria conditions which will develop if an animal fed on the ethylene glycol or oxalate rich plant diet। देखो, अभी जो कैल्शियम ऑक्सलेट डाइहाइड्रेट क्रिस्टल है, मैंने आपको बताया कि हेल्दी एनिमल्स के केस में भी देखने के लिए मिलते हैं और उन एनिमल्स के केस में देखने के लिए मिलते हैं जहां पे एनिमल कैल्शियम ऑक्सलेट यूरोलिथ्स की कंडीशन से सफर कर रहा होता है। बट दे कैन ऑल्सो बी सीन इफ एन एनिमल इज सफरिंग विद द हाइपरकैल्शिनुरिया। इसका मतलब बहुत ज्यादा कैल्शियम आ रहा है उसके यूरिन में, तब भी क्या होगा, यूरिन सैंपल में कैल्शियम ऑक्सलेट डाइहाइड्रेट क्रिस्टल्स देखने के लिए मिलेंगे। और इफ एन एनिमल इज सफरिंग फ्रॉम द हाइपर ऑक्सिलूरिया, इसका मतलब ऑक्सलेट बहुत आ रहा है यूरिन में, तो भी उस एनिमल के यूरिन सैंपल में आपको कैल्शियम ऑक्सलेट डाइहाइड्रेट देखने के लिए मिलेगा। अब बात आती है कि एनिमल में हाइपरकैल्सिनुरिया और हाइपर ऑक्सिलूरिया की कंडीशन कैसे डेवलप हुई जिसकी वजह से उसके यूरिन में कैल्शियम ऑक्सलेट डाइहाइड्रेट क्रिस्टल्स हमें दिखने लगे। सो बेसिकली अगर कोई भी एनिमल इथाइलिन ग्लाइकोल और ऑक्सलेट रिच डाइट पे फीड करता है, तब वहां पे हाइपरकैल्सिनुरिया और हाइपर ऑक्सिलूरिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है जिसकी वजह से कैल्शियम ऑक्सलेट डाइहाइड्रेट के क्रिस्टल्स उसके यूरिन में आने लगते हैं। ठीक है, दे कैन ऑल्सो बी डेवलप ओवर द टाइम इफ द यूरिन इज स्टोर्ड। देखो, अगर आपने यूरिन को स्टोर कर रखा है तब भी क्या होगा, उस यूरिन में कैल्शियम ऑक्सलेट डाइहाइड्रेट क्रिस्टल्स डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, दिस इज द माइक्रोस्कोपिक पिक्चर ऑफ द कैल्शियम ऑक्सलेट डाइहाइड्रेट क्रिस्टल। एज पर द picture you can see that their size is small, some of the crystals are large in size as well as they have the octahedron symmetry with the envelope outside. So that's all for this video. We will meet very soon in the next one.